Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 23314444 and 23421050. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद वैभव। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो गया शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र का और आप सभी श्रोताओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसे कि आज सोमवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। Absolutely, Sparsh. We begin with the headlines. Cabinet approves one more semiconductor unit in Gujarat, aims towards vibrant semiconductor ecosystem. More than 13,900 crore rupees for 7 major schemes towards improving farmers' lives and livelihood. And domestic stock indices close high. Sensex closes at 82,560. Nifty settles at 25,279. कैबिनेट ने गुजरात में एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को दी मंजूरी। किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार की दिशा में 13,900 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं को मंजूरी मिली। और घरेलू सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 82,560 और निफ्टी 25,279 पर बंद। जी, तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की पहली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 13,966 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी। ये 7 योजनाएं डिजिटल कृषि अभियान, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन, बागवानी का सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। The Cabinet has approved the proposal of Kings Semicon Private Limited to set up a semiconductor unit in Sanad, Gujarat. The decision has been taken with an objective to develop a vibrant semiconductor ecosystem. The proposed unit will be set up with an investment of 3,300 crore rupees. The capacity of this unit will be 60 lakh chips per day. The chips produced in this unit will cater to a wide variety of applications. These include segments such as industrial, automotive, electric vehicles, consumer electronics, telecom and mobile phones. The program for development of semiconductors and display manufacturing ecosystem in India was notified in December 2021 with a total outlay of 76,000 crore rupees. Construction of all 4 semiconductor units is progressing at a rapid pace. These 4 units will bring in investment of almost 1.5 lakh crore rupees. The cumulative capacity of these units is about 7 crore chips per day. And we are joined in by our very first caller for this Monday's edition of Market Mantra. Straight from Kolkata, we have Atanu Saha. Atanu, welcome to the show. Please ask your question. Good evening. Yes, good evening to everybody. Good evening. As far as RBI data concerned, private corporate sector's profit
sales growth, it is 6.9%, and profit growth, it is 14.2% as far as April and May-June result. This is this is private corporate sector. And we wish to know about the government corporate sector and what's different, and please highlight in this situation. Thank you. Yeah, thank you for the input. You see, the growth figures which are shown out are not by RBI, but by the Ministry of Commerce and others, because RBI only gives the growth figures in terms of monetary units. That is in specific the currency, which is M3, or in terms of inflation, what is happening, and so on and so forth. The company data, which is whether it is government companies, whether it is public sector undertakings, or it is private companies, is given by the Ministry of Corporate Affairs or in independent institutions and research bodies which actually calibrate the data from time to time. As far as the data is concerned, that is for the last quarter, because the quarter results usually come after 2-3 months, and that's where the data for March ending 2024 have come out recently, and that's where we are seeing the profitability factors coming in. But if you really look at the last 1 month, we have been seeing, if you read the newspapers carefully, you would see both public sector undertakings, oil companies, private companies, large and small and mid-sized companies, all of them have shown a very positive and resilient growth. And that's where I think it's important that the market also is showing that sentimental value which is coming from the financial reportings of these companies. Fortunately for India, all factors, whether it is the macroeconomic indicators or private and public limited companies' profitability ratios, they have been showing positive result. In fact, we have also seen the inflation dip down tremendously, much beyond the expectations of the RBI, and going to about 3.54% currently, which is below the 4% mark which RBI has been targeting, primarily because of the the base year shift which is there. We will similarly see more rebounding impact in the next 1 month or so, with various companies' projections which will go up further. So there's a lot of talk about the semiconductor plants and chips that the government has been planning for a very long time, and they're looking for a very long time ahead in the future through these. The target industries seem to be a wide array of industries which are highly future-looking and technologically driven, be it automotives, be it space, be it gaming, be it mobile phones. How far along do you think that this decision will go of the government of setting up these plants, and how should an investor look at these decisions of the government? I think in terms of investment going forward, or even people who are playing in the market in terms of investments in companies which are involved with either technological based structures or semiconductors, we are expecting to see growth in the next 3-4 years. However, we are not going to see too long-term growth projections for this industry, which is specifically because this is a very fast and changing industry, and we may see newer technologies which may come up which are beyond semiconductors as well. So not to downside the investment made by the government and the allocations done, that will go on, and that will have a rebounding effect for the next 2 decades. However, if you really look at the industry's momentum which we are seeing as of now, this is expected to be there for the next 2 to 3 years. जी, और इसी के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं नितिन कुमार। नितिन जी, स्वागत है आपका शो में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। हाँ, धन्यवाद जी। जी सर, आज हम ब्रांच में गए थे प्राइवेट निजी बैंक में, इसमें हमने एफडी के लिए जानकारी ली, तो उन्होंने हमें एक स्कीम और बताई। आप अपना रेडियो अगर आप प्लीज बंद कर दें या आवाज कम कर दें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है। हेलो जी, यस प्लीज। हाँ सर, हम आज निजी बैंक में गए थे, जो प्राइवेट बैंक है, कई बैंक है, तो उसमें हमने सर्च किया कि वो हमें स्कीम दे रहे हैं ब्रांच में एफडी के लिए, कुछ में अलग रेट है, कुछ में अलग रेट है। फिर उन्होंने हमें एक स्कीम और दी कि आप इसमें साल में 2 लाख रुपए जमा कीजिए, आपको 80-83 हजार रुपया हर साल आपके रिटर्न आपके अकाउंट में आता रहेगा। वो कहते हैं आप 12 साल तक आप उसको 2 लाख रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, आपके 24 लाख रुपए हो जाएंगे। फिर 13वें साल में आपको देने नहीं पड़ेगा 2 लाख रुपया, और आपके अकाउंट में 83,000, 84,000 जो भी अमाउंट है
वो आता रहेगा तो आगे के 25 साल तक, मतलब 12 तो हो ही गए, तो आगे के 25वें साल तक आपको आ जाएगा, तो तब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी, तब हम उसको रिटर्न आपका मिल जाएगा। 83,000 रुपया जो आता रहेगा वो आपका आता रहेगा 25वें साल तक, आपको कुछ देना नहीं पड़ा, 13 साल कुछ नहीं देना, 12 साल आपको देना। इसके बारे में आप हमें क्या राय देंगे? देखिए जी, जहां तक बैंकों की स्कीम है, काफी सारे फिक्स डिपॉजिट्स के ऑप्शंस हैं और इस समय काफी अच्छे रेट्स आपको मिलते हैं जो काफी हाई रहते हैं, और ज्यादातर बैंक इस समय काफी अच्छे रेट्स दे रहे हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन से 1 से 2 साल के बीच के लिए भी। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस हैं सेविंग्स के लिए, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं, उसमें भी काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। जहां तक ये एसआईपी स्कीम्स की बात है, जैसे मंथली इनकम सेविंग स्कीम्स होती थी पोस्ट ऑफिस में, अब ऐसी स्कीम्स काफी सारे बैंकों ने और प्राइवेट फंड्स ने भी बनानी शुरू कर दी है। तो उसके लिए लॉक इन पीरियड्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आप सोच समझ के उसको डालिएगा कि अगर आप उसमें उतने लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और जो आपने बात बताई ऐसे ही सिस्टम रहता है जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया है। बाकी जो जिस बैंक में आप पता कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी जान के कि वो प्राइवेट बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, सरकारी बैंक है, क्या बैंक है, उसको आप आगे टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं। पर ये चीज जरूर समझ लीजिए कि इन स्कीम से पैसा डालने के बाद ये नहीं कि आप कल उसको निकाल सकें। तो इसलिए नॉर्मली जो फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रखना बेटर रहता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं 1-2 साल। ज्यादा से ज्यादा अगर आप सपोज कन्या के लिए कर रहे हैं तो सरकार ने भी एक स्कीम निकाल रखी, कन्या स्कीम निकाल रखी है, उसमें आप लगा सकते हैं, उसमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। जब वो मैच्योर होंगी 18 साल से ऊपर की होंगी तो उनको उसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसे कुछ और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बेनिफिट्स दे रखे हैं, टैक्सेशन के भी बेनिफिट्स दे रखे हैं, और टैक्स सेविंग स्कीम्स भी हैं बैंक्स में, बहुत सरकारी नॉन सरकारी, जिसमें 5 साल के अंदर आप लगा सकते हैं। आरबीआई के जो बॉन्ड्स हैं वो अब 7 साल के हैं, जो टैक्स सेविंग स्कीम के बॉन्ड फिक्स डिपॉजिट हैं वो 5 साल के, उसमें भी रेट इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो मेरे विचार में बहुत ज्यादा लंबे समय 10-12 साल का ना अटका के पैसा अगर आप अभी रखेंगे तो उसमें वो बेटर रहेगा। I'd like to inform all our listeners once again that to have your queries answered on economic, business and stock market news through and our very special guest, financial expert Aman Agrawal ji in today's Market Mantra, you all can call us on 2331-4444 and 2342-1050. मैं numbers एक बार और दोहरा देता हूं, 2331-4444 और 2342-1050। जी, और महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज सवाल पूछिए अपना। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर, अमन सर को भी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो आईपीओ के बारे में है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी वो लॉन्च करने वाले हैं, तो सर मतलब ये जो आईपीओ लॉन्च करते हैं तो ये इतना मतलब इसको परचेस करने का जो दिन जो होते हैं जो इतने लिमिटेड क्यों रखते हैं, इसके पीछे इनका क्या पर्पज होता है? और अपना ये जो अभी मार्केट हाईएस्ट लेवल पे है तो क्या ऐसे आईपीओ लेनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए जी, पहली बात तो आपने अभी उसमें आईपीओ की कोई इंडस्ट्री भी नहीं बताई कि कौन सी इंडस्ट्री है कौन सी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि इस समय ठीक है या नहीं है उस आईपीओ के बारे में। पर ये चीज जरूर है कि आईपीओ आपको फेस वैल्यू पे मिलता है, कम रेट पे मिलता है। अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जैसे डिफेंस में हो या टेक्नोलॉजी में हो या बैंकिंग क्षेत्र में हो या फिनटेक के अंदर हो, जो आजकल बहुत तेजी से चल रहे हैं, जैसे अभी बात भी की थी सेमीकंडक्टर्स जैसी इंडस्ट्री में हो, ईवी बेस्ड इंडस्ट्रीज में हो, तो इनमें काफी उछाल आ रहा है, तो आपको प्रीमियम जरूर अच्छा मिलेगा। पहले समय में आज से 10-15 साल पहले तो लॉक इन पीरियड्स भी होते थे, आईपीओ को मार्केट में आने में 1 साल लग जाता था, पर अब वो लॉक इन पीरियड्स नहीं है, तो इमीडिएटली कुछ समय में आ जाती है। जहां तक आपने 2-3 दिन की बात की जो इनको दिया जाता है, बिकॉज उस पीरियड में इनको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा तो वो आगे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उनको इशू नहीं कर सकते हैं। कभी कभी सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट से कम होता है, अगर वो कम होता है तो अगर वो अंडरराइट हुआ है तभी आगे जा सकता है। अगर अंडरराइट नहीं हुआ हुआ है, अंडरराइटिंग मतलब एक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहती है कम आया तो हम बाकी पैसा हम अपने पास से देंगे, आप उसको ले लीजिए। ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसमें कभी कभी सेबी के पास उनको जाना होता है अप्रूवल लेने के लिए कि हम इसको रखें या
इसमें से पैसा वापस करें। तो इस तरीके से 2 या 3 दिन के अंदर उनको ये सारा आईपीओ मैनेज करना होता है। इसके काम जो है 6-6 महीने 8-8 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। ये नहीं है कि काम पहले नहीं होते हैं, मार्केट में मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है कि आईपीओ आने जा रहा है, तो इसलिए लोगों को पता होता है। तो जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, खरीदे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि आने वाला है और फिर वो 2-3 दिन की ही विंडो उनको दी जाती है। अब ये इसके पीछे क्या स्ट्रक्चरल रीजन रहा है ये तो सेबी ही जानती है या जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्हीं को ही पता है कि उन्होंने क्यों ये 2-3 दिन की ही विंडो रखी हुई है इसके लिए। एंड वी हैव अ नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम मुंबई। सुब्रमण्यम जी, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें प्लीज। Yeah, good evening. I'm Subramaniam calling from Mumbai. Good evening. I have a doubt. Yes, please. Considering the current market scenario, Yes, please. What should be the best allocation of various assets? Because currently the markets are also at the all-time high and the volatility is also very high. Very true. So, if you are a risk taker, then you would love to enjoy volatility and make profits out of it, because risk takers always love to play with volatility. If you are not a risk taker, it is always to take a caution and sit back comfortably on a couch and not start investing or playing with any kind of an asset. As far as asset allocation is concerned, Harry Markowitz, which was one of the famous Nobel laureates who got the Nobel Prize for security allocation, he said that you must not put all eggs in the same basket. That meaning thereby that you must diversify your portfolio, invest some things in long-term assets, some things in short-term assets. Like long-term assets could be real estate, short-term assets could be gold, fixed deposits, and so on and so forth. Stock shares also, if you are investing in secondary market in shares, are short-term markets again. So these are some things where you can invest and save your findings, but you must keep a balance in terms of what you need in terms of liquidity, how much money do you need for your consumption, for your spending on a day-to-day needs, and how much money do you have excess of where you can play with, and that you would like to invest and save for any contingency or any problem which may happen tomorrow. So given these requirements, you need to diversify. Every one of us as an individual has different requirements depending on the family background we come from, the kind of service we have been in the past, and the kind of savings we have been able to create over the time. जी, और आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। आज के बाजार का हाल जान लेते हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर की सुस्ती भरे सत्र के बावजूद आज दोनों ही सूचकांकों ने अपने उच्चतम स्तर को छुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 194 अंक की बढ़ोतरी के साथ 82,560 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 43 अंक की बढ़त के साथ 25,279 पर रहा। एनएसई में 183 कंपनियां अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर रहीं और 22 ने निचले स्तर को छुआ। Domestic stock indices hit their record highs despite the noon trade being lackluster. At the closing bell, the BSE Sensex gained 194 points or 0.24% to close at 82,560. The NSE Nifty rose 43 points or 0.17% to close at 25,279. In NSE, 183 companies hit their 52-week high, 22 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended flat, while the small-cap index lost nearly 0.5%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were Bajaj Finserv, Bajaj Finance and HCL Tech rose above 3%, and ITC and IndusInd Bank gained more than 1.5%. Conversely, the major laggards were NTPC and Tata Motors, which fell more than 1.5%. Mahindra and Bharti Airtel lost 1%, and Power Grid shared more than 0.5%. In sectoral indices at BSE, 7 out of 20 sectors logged gains. The top gainers were FMCG more than 0.7%, financial services and utilities more than 0.5%. Conversely, the major laggards were telecommunication more than 1.5%, metal more than 1%, and industrials and capital goods nearly 1%. The overall market breadth at the BSE was negative. Out of 4,187 companies, shares of 1,776 companies advanced, 2,262 declined, and 149 remained unchanged. जी, और अगले कॉलर लेने से पहले हम रुपए का भी हाल जान लेते हैं। निराशाजनक घरेलू व्यापक आर्थिक आंकड़ों के कारण आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की कमजोरी के साथ 83 रुपए और 92 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 101.72 के स्तर पर था। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछिए अपना।
अच्छा, शायद किसी कारणवश हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो अमन जी, रुपया लगभग काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसके पीछे आप प्रमुख कारण देख पा रहे हैं? देखिए जी, रुपए का गिरना जो है मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, चाहे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखें, हम विश्व के चौथे नंबर पे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। 681 बिलियन डॉलर्स का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 7 बिलियन डॉलर्स अभी कुछ समय में ही हमारा बढ़ा है इसके अंदर, और पिछले 2-3 साल में देखें सबसे ज्यादा राइज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हुआ है। इसमें गोल्ड का स्तर भी देखें तो करीबन 89 मिलियन के करीब गोल्ड रिजर्व्स ही हमारे पास हैं। 60 मिलियन के करीब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व्स और चीजें हैं, तो इसलिए काफी स्टेबल रहा। इन्फ्लेशन भी देखें तो काफी कम, जैसे मैंने पहले बताया 3.54% के करीब आया है, वो भी अच्छा चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो अभी ही 2-3 दिन पहले भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की रिपोर्ट आई है जिसने 7.2% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है। उससे कुछ पहले 7 से 7.5% के बीच में ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की जा रही थी। एक रिपोर्ट आई हुरना रिच लिस्ट के हिसाब से, तो वो कह रही है कि हर एक बिलियनियर हर महीने में हमारे यहाँ एड अप हो रहा है, काफी सारे बिलियनियर्स बन रहे हैं। तो मतलब ऐसी कोई धारणा नहीं है किसी वजह, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए या पब्लिक सेक्टर में देखा जाए, और कि जो है गवर्नमेंट की एलोकेशंस देखें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, उसके अंदर भी बढ़ रही है, एजुकेशन हो उसमें भी बढ़ रही है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से रुपए के गिरने का हो, पर हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें कुछ आउटफ्लोस हुए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अमेरिका हो या यूरोप हो, उनकी जो हाली हालत है, उनकी जो सिचुएशन है फाइनेंशियल, वो अच्छी नहीं है। तो वहां पे काफी सारी कंपनीज जो हो सकता है विड्रॉल्स कर रहे हों, उस वजह से हो सकता है कि ये रुपया हमारा थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आए। पर इसमें कोई ऐसी बहुत चाहती ढूंढने की नहीं है। रुपये और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दोनों ही बहुत सुदृढ़ और बहुत स्ट्रांग है। Absolutely, Aman sir. And we have 2 callers lined up. First, let's talk to Dilip Kumar from Jaipur. स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। ये आईपी में बेहतर है या अपन मार्केट में डायरेक्ट परचेज करते हैं सुबह 9 बजे प्री मार्केट ऑफर, या फिर एएमओ, बेटर कौन सा रेट है? देखिए जी, बेटर की बात नहीं है, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप जिस मार्केट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करें। अगर आप उस मार्केट के गेम्स और रूल्स को नहीं जानते हैं तो प्री मार्केट ऑफर्स में मत जाइए, बिकॉज वो एक तरीके से सट्टा खेलने वाली हिसाब किताब है, क्यों पता नहीं है कि मार्केट किस दिशा में जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, गेन भी हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। जो ज्यादातर प्री मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं उनको पहले से ही खबर रहती है, वो सारे टाइम स्टॉक ब्रोकिंग में काम करते हैं, खेलते रहते हैं, और उनको लोगों से इनपुट्स मिलते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है क्या नहीं होना, उसी बेसिस पे प्री ऑफर्स करते हैं। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर आप जब खुले उसके बाद ही अपना ट्रेडिंग करें। जी, और दिल्ली से अब मुंबई की ओर रुख करते हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं रत्नाकर। रत्नाकर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्लीज सवाल पूछें अपना। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि जब भी एक कंपनी बोनस शेयर, तो उसमें बोनस शेयर डिक्लेयर होने के रिकॉर्ड डेट के पहले वो खरीद कुछ टेक्निकल कारण से हमारा संपर्क टूट गया है, और अब आगे बढ़ते हुए हम जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी हाल जान लेते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। 5 प्रमुख सूचकांकों में से 3 आज मजबूती के साथ बंद हुए। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.61% के लाभ में था। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.25% बढ़ा, और जापान के निकेई में 0.14% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर हांगकांग के हैंगसेंग में 1.68% की गिरावट देखने को मिली, और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट भी 1% से अधिक के नुकसान के साथ बंद हुआ। वहीं बात करें यूरोपीय शेयर बाजार की, तो अंतिम समाचार मिलने तक यूरोप के तीनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। फ्रांस का कैक 0.15%, लंदन का फुत्सी 0.12% और जर्मनी का डैक्स 0.10% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्लीज सवाल पूछें। मेरा सवाल ये था कि जो एलटीसीजी अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है? अर्थात अगर किसी ने मान लीजिए 23 जुलाई से पहले 8-10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसके ऊपर उसको 10% देना होगा, या
पिछले गेम्स में भी 12.5 देना पड़ेगा, बिकॉज ये किसी को अभी तक कुछ पता नहीं। मैंने कई सीरीज से बात की है। देखिए जी, ये फाइनेंशियल ईयर के ऊपर है, जिस समय आपने किया उसका अगर इस साल के अंदर आपने किया है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर पिछले साल में किया है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई चीज की है तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर। पर बाकी जो है, जैसे मैं आप कह भी रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो इंट्रिकेसीज डॉक्यूमेंट्स की वो ध्यान से देखेंगे, और अभी तो आपके पास समय है इसको फाइल करने के लिए। जी। और अमन जी, थोड़ा बाजार पे जरा नजर डालें तो हमने देखा है इन दिनों, अभी हमारे कॉलर ने भी कहा कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट्स हैं, और आपने कहा रिस्क टेकर जो होगा वो इसमें से प्रॉफिट निकाले, लेकिन जो रिस्क टेकर नहीं है स्पेसिफिकली अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है या पिछले 2-3 साल से जुड़े, तो उनको इस तरीके के मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पहली बात, जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट होती है उसका आज ज्वाइन करने से या 10 साल पहले ज्वाइन करने से कुछ नहीं जी। वो आपकी एपिटाइट के ऊपर है। जैसे खाने की एपिटाइट होती है, कोई एक रोटी से पूरा पेट भर जाता है, किसी का 10 रोटी से भी नहीं पेट भरता है। इसी के से जो है, जो आदमी ट्रेड कर रहा है उसका लॉस लेने का, कि मैं 1 करोड़ का लॉस ले सकता हूं, मैं 50 लाख का लॉस ले सकता हूं, मैं 10,000 का लॉस ले सकता हूं, वो रिस्क टेकिंग एपिटाइट बताएगी। तो उसी हिसाब से वो निवेश करने में मार्केट में उतरे। जब वॉलेटिलिटी हाई होती है, इस समय सबको पता है कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है, तो इसके अंदर बढ़ावट भी हो सकती है, घटावट भी हो सकती है, दोनों तरफ। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी एवरेज है उससे ऊपर कितना जा रहा है और नीचे कितना जा रहा है, तो दोनों तरफ होने की उम्मीद हो सकती है किसी डायरेक्शन में। तो इसलिए वो देखना जरूरी है उसको कि वो उस लॉस को बियर कर सकता है, नहीं कर सकता है बियर, उसको उसकी आर्थिक स्थिति पे, उसके घर की दिनचर्या पे असर नहीं कर रहा है, वो एक्स्ट्रा पैसे से खेल रहा है तो वो करे। और अगर उसको लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा खड़ा कर रहा हूं, या मैं घर की पेमेंट करने के लिए कर रहा हूं, या घर बनाने के लिए कर रहा हूं, तो उसको इसमें खेलना नहीं चाहिए। उसको वेट करना चाहिए जहां वॉलेटिलिटी लो हो और सस्टेन्ड ग्रोथ, या ऐसे जो सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, या फिर फिक्स डिपॉजिट्स हो गई, या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो हो गए, उनमें इन्वेस्ट करें जहां पे आपको मालूम है कि सस्टेन रिटर्न आपका आएगा, प्रिंसिपल कहीं नहीं जाएगा। Aman sir, a very lucid explanation to a very complex question on risk appetite, I would say. Thank you so much for that. Moving over to Delhi, we have our next caller, Yogesh Sharma ji. Yogesh ji, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें प्लीज। हाय, मेरा सवाल तो ये है कि हमने एक प्रॉफिट बुक करा था बजट आने से 2 हफ्ते पहले इसी फाइनेंशियल ईयर में, बट तब टैक्सेशन का रूल कुछ और था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। बट उसके बाद जो बजट आया है उसके बाद से जो कारोबार होगा उस पर वो टैक्सेशन लागू होगा, या कैपिटल गेन मेरे वाले जो हमने प्रॉफिट बुक करा था उस पर भी नया वाला टैक्स रूल लगेगा? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, टैक्सेस जो रूल्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं। अब आपने कब खोला और कब बंद किया उसके हिसाब से वो अगर शॉर्ट टर्म है और उस फाइनेंशियल ईयर में लग रहा है तो उसके ऊपर वो लागू होगा। Absolutely. And moving over to another story of ours, oil prices slipped today, extending losses from the end of last week on expectation of higher OPEC plus production from October and supply concerns. In the global crude market, Brent crude was trading 0.06% down to trade at $76.88 per barrel. The US West Texas Intermediate WTI was also trading 0.08% down at $73.49 per barrel when reports last came in. जी। और चलते चलते सोने और चांदी का भी हाल जान लेते हैं। सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.03% गिरकर 71,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.80% गिरकर 84,410 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और अब समय है कि इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का। और अमन जी, आप मार्केट मंत्रा में आए और हमारे सवालों के सब जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। Before we end the headlines once again, Cabinet approves one more semiconductor unit in Gujarat, aims towards vibrant semiconductor ecosystem. More than 13,900 crore rupees for 7 major schemes towards improving farmers' lives and livelihood. And domestic stock indices close high. Sensex closes at 82,560. Nifty settles at 25,279. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.